Sikkim Travelog. I hope you have enjoyed the first two. If so, please don't forget to subscribe and hit the like button. In this episode, we will cover our wonderful experience of Rinchen and its village life. Hi, good morning. Today is day 3 and we have come to Latpanchar last night. The road was not at all good, and in fact our car got stuck in one of the landslide area, and then it was pushed by some locals, then we could get out. Last time we took this path to spot a hornbill, the only hornbill we spotted in Latpanchar in the month of March. So what we have decided that we will just explore the Mahananda Wildlife Sanctuary that we haven't been to the last time. Come, let's go. शहर के शोर की भीड़ की आदत सी हो गई थी, अनजाने चेहरों की रास्तों की, सुबह से शाम उलझनों में जाती थी, रातें मुझे अकेला पाती थी। आज आईने में देखा जो खुद को, एक अजनबी दिखता है मुझको, अब घर जाना है मुझे। Now we are going to Birik. From Birik we will go to Meli, and from Meli we will go to Jorthang, and from Jorthang we have to take the route to Rinchen. We have started around 10 o'clock. Expected time of arrival is 2 p.m. आसमानों में जंगल के शोर में, नदियों के किनारों पे पत्तों की ओर में, आंखें खुली तो समझ कुछ ना आया, कौन हूँ मैं पहचान ना पाया। Only 10 kilometers away from Rinchen, and this is what we have found on the road. It's 3:30 now. We have reached almost 1 hour late. Now we are very hungry. We'll have our lunch first
then I'll give you a review and view of the place. It's a wonderful place, I'm telling you. Stay tuned, stay with me. This is our small, well-maintained, very nice room. Cottage. It's a cottage. It's a twin cottage. This is the other cottage. मैं रोनी हूँ, ऑर्किड विला का एक सदस्य, यहाँ पे काम करता हूँ। यहीं पर मेरा जन्म हुआ है और फिर आप लोग आइए हमारा ऑर्किड सुंदर सा ऑर्किड विला को और खूबसूरत बनाइए, थोड़ा मजे करिए। Now I am going with Ronnie to explore the organic farming done by this orchid villa. ये जो है हैंड का मतलब हाउस, हैंड हाउस, ऑर्गेनिक हैंड हाउस। Ronnie became busy chasing the hens as he has to ensure them back in the shelter for protection against leopards and other wild animals which are on prowl at night. So we postponed our organic farm visit for the next morning and started preparing for the musical extravaganza with bonfire. We enjoyed the evening like anything and also tasted tomba, the local wine. My brother-in-law liked the taste most and he relished it like anything. Welcome to day 4. This is what we woke up to, the grand view of the Kanchenjunga. Really, this is what matters when I'm traveling to this part of the country. Now we will be taking a tour of the organic farm of this resort. As you know, Sikkim is a totally organic farming state, and usage of fertilizers and artificial manures are very less and in fact insignificant, or they do not use it. आइए सब लोग हम ऑर्गेनिक फार्मिंग का मैं टूर कराऊंगा। ये जो है ये हमारा ब्लूम का खेती है, मतलब ब्लूम फार्मिंग, मतलब वो स्वीप करते हैं ना वो ब्रूम झाड़ू। अच्छा, वो झाड़ू का खेती, ये झाड़ू का खेती है। हाँ, मतलब ये जो अपर पोर्शन है इससे ब्लूम उगता है, इससे वो काठी से बनता है और एक एक कलेक्ट करके हम लोग पूरे मतलब एक बंडल बना के हम बेचता है। इधर पे दिस इज योर नाइट्स क्वीन, मतलब रात की रानी का फ्लावर।
मतलब उसको मतलब फूल को बोलते हो रात की रानी मतलब। तो ये रात को खिलता है क्या? रात को मतलब वो सेंट देता है। रात को हाँ। सेंट देता है, ओके। दिन में सेंट तो मतलब ऐसे नहीं आएगा, रात में जो सेंट आएगा ना उससे मतलब पूरा रात को चांदनी बना देगा। सर जी थोड़ा सावधानी से आइए, इधर पे जोक मिलता है, वो आप लोगों का खून पी जाता है। अरे रॉनी, ये सिर्फ हम लोगों का खून थोड़ी पीता है, तुम लोगों का भी तो पीता है। वो दो ये मेल है सर। हाँ 2 ही मेल है, फीमेल का उस तरह। सर जी ये देखिए कौन मकई, ये कितना टाइम लगेगा बड़े होने में? ये तो अभी विंटर टाइम का है, जो मतलब हम लोग यूजुअली उगाते हैं इसको घास के लिए, मतलब काऊ को देने के लिए। ओके ओके। जो समर टाइम में उगता है वो थोड़ा मिनिमम 2 मंथ्स लगेगा। देखिए ये है हमारा शिप का फार्म, ये तो नहा रहा है। ये मेल बड़ा वाला है। हाँ, आपने शिप देखा ना? हाँ शिप देखा, कितना सुंदर है वो ब्लैक। वल्चर्स हैन, मतलब वल्चर की तरह दिखता है। गिद्ध की तरह वो नेक है ना उसका। हाँ हाँ हाँ। इसलिए कहते हैं वल्चर्स हैं। रॉनी, हाँ सर जी। हम ना यहाँ पे रोज अंडा और चिकन ही खा रहे हैं। हाँ तो हम लोग कलकत्ता से है ना। हाँ सर जी। हम बंगाली लोगों को फिश खाना बहुत अच्छा लगता है। आइए सर जी, मैं आपको थोड़ा फिश फार्मिंग दिखाता हूँ। यहाँ पे फिश फार्म भी होता हाँ है? फिश फार्मिंग भी होता है। अरे चलो चलो देखते हैं, चलो चलो। आपको पॉन्ड मिलेगा। यहाँ पे इसमें- कौन सा फिश पालते हो? कॉमन क्राफ्ट और कतले। कतला मिलता है? यहाँ कतला मिलता है। क्या बात है। तो ये यहाँ का फिश जो फार्म करते हो वो खाते हो तुम लोग? मतलब कभी कभी खाता हूँ, कभी कभी खाते हैं, पर दूसरों को बेचता है। अच्छा अच्छा। फार्म करके। ये हमारा लोकल गेट बेम्बू, हैंडमेड गेट। हैंडमेड गेट। Very nice. मतलब इसको क्यों लगाते हैं, क्योंकि मुर्गा मतलब खेती को उगाना मतलब खराब नहीं करते। खराब नहीं करेगा। I am so excited. I found a fish farm and they sell it. They cultivate, you know, katla, one of my favorite staple. ये पानी का सप्लाई कहाँ से आ रहा है? पानी का सप्लाई जो है हमारा रिवर से आ रहा है। उधर पे हम लोग रिवर को बोलते हैं हम लोग खोलचा से हम लोग पानी का सप्लाई वहाँ से ही करते हैं। पीने लायक पानी, मतलब फिश का पानी, पॉन्ड का पानी, जैसे हम लोग हैंड से ही करते हैं ना, वो पाइप लेकर जाकर वहाँ पे मतलब पत्थर लगकर पानी को डाइवर्ट कर देते हैं। नेपाली पे रुक टमाटर मतलब फ्रीज टोमेटो मतलब ये बहुत ही मतलब खट्टा रहता है। खट्टा रहता है। आम टमाटर से ज़्यादा खट्टा रहता है। अच्छा। तो मतलब ये एक दोगे तो काम हो जाएगा? हाँ एक दोगे, एक खाओगे तो काम हो जाएगा। We could not hold ourselves from plucking few guavas. Organic guavas. They were looking yum, and we were so sure that they would taste divine. Have heard a lot about organic farming and seen a lot of videos about Sikkim's organic farms. But today is the day we were experiencing it. I'll just taste one guava just plucked by my son. Yummy, this is awesome, very sweet. Organic farming, no pesticides. It's very important when you come to a place. You should always mix with local people, enjoy local food, and explore the surroundings. You will end up finding this, you know, memorable and awesome things. This is entirely an organic farming, and this is very, very sweet, much better than what we buy in our city. How's that? I have insisted Ronnie to please, get one more for me. It is absolutely amazing taste. आइए सर, आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये जो है
ये हम बोलते हैं उस भट्टी, नेपाली में हम लोग बोलते हैं भट्टी, क्योंकि इसमें आता है जब हम लोग इलायची को मतलब वो तोड़ता है ना पेड़, मतलब वो प्लांट से इलायची को यहाँ लेकर आकर मतलब यहाँ पर ऊपर पे एक जाली आएगा, जाली पे वहाँ पे मतलब इलायची को डालेगा और नीचे से जो मतलब आग को लगाया, उतना आग नहीं, मतलब सिर्फ धुआं चाहिए उसको सुखाने के लिए, इलायची को सुखाने के लिए। और फिर इलायची को मतलब सुखाकर बोरे में डालकर हम लोग बेचते हैं। कति केजी एक केजी 800। ये ऑरेंज का पेड़, मतलब ऑरेंज ट्री। वाओ, ये लग भी गया ऑरेंज। ये तो यहाँ पे भट्टी। अभी जनवरी के टाइम में, दिसंबर के लास्ट टाइम में वो पक जाएगा। ओके, वाओ वाओ, ब्यूटीफुल, एवरीथिंग ऑर्गेनिक। ये से गोबर साफ कर रहे हैं। हाँ हाँ, इसका गोबर। ये वाला घर खत्म हो गया। अच्छा, ये 2011 का अर्थक्वेक के लिए ऐसा हुआ। वो देखिए ना, ओह माय गॉड, तो ये घर तो पूरा अब कोई नहीं रहता इसमें। रहता है। हाँ, रहता है। माय गॉड, कितना चौड़ा क्रैक लगा है। 2011 का। हाँ, सोते ये वाला फूलता है नहीं, सही होता है। हाँ, बहुत। ये है डल्ले मिर्ची, हाँ, सिक्किम का ऑर्गेनिक डल्ले मिर्ची। बहुत बहुत तीखा होता है ये। ठीक है, बगल में वो मिलता है ना वो। So we spent almost 2 hours with Ronnie at the organic farm. We just enjoyed every moment of our stay there, starting from the evening entertainment to the morning view of the Kanchenjunga, and then followed by the farm and village tour. Travel is not only about going to touristy places, but to enjoy the local flavor of life. We have done our breakfast and we are ready. Now we will go to Pelling. And if it goes directly into the stream, into the flowing stream,